So I welcome you all on behalf of Association of Muslim Professionals to online career guidance seminar. Career guidance helps students to select the right kind of job-oriented courses which will help them to take their career in the right direction. So we'll be starting this session with a short qiraat, and then I would request Mr. Fuzail Said to kindly introduce AMP to all the participants, and then we'll hand it over to the speaker of the day, Mr. Khalid Khan, to proceed with the session. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Thank you so much. So I now request Mr. Fuzail Said to kindly host this session and start with the AMP introduction. Thank you. Thank you, Shehzad, Mr. Shehzad. Very good afternoon to everybody. I will be sharing my screen now so that you're able to see the presentation. Yeah, I hope you're able to see the presentation now. So welcome to the online career guidance seminar by the Association of Muslim Professionals. So I'll quickly take you through a bit about AMP and about AMP's mission and vision. So AMP is registered as a non-profit organization. We have operations across India, across almost all of the states, USA across the entire country almost, UK as well as Australia. And EMP is currently in its 12th and 13th year serving our community in the field of education, employment and empowerment. Those are our main core objectives that we work with. Our vision is to positively impact the lives of at least 10 million people by 2030, and we are well on the target. We are all working towards that. Our mission is to basically empower the underprivileged in our society for the greater benefit of the society in general, as well as the entire nation and whichever country that we step into as a whole. Our vision is basically to create a model community where there is advancement in education. We do this through a lot of initiatives. We want our communities to be socially progressive and not regressive. We want our communities to be culturally vibrant and politically influential as well as economically dynamic. So every initiative that we take up is in line with this mission and vision that we have for PMP. To give you a bit of numbers about basic idea about our operations. So we have to start off with, we have the school development programs. Now the school development programs are basically, we have skill development lectures, and we basically educate children through multiple lectures. So what we have right now, the career guidance cell seminar is through that, and we have already executed close to 2,750 plus skill development lectures since the time of our inception. We've connected with 800 plus schools. More than 275,000 students have benefited from our operations so far. And we've already trained 100 plus teachers on various parenting and training workshops. So, you know, all of this is sort of created a lot of snowball effect in terms of the underprivileged and upbringing and all of that. Then we have the employment assistance cell. So our operations don't only end at the school level, we move on to the employment part of it as well. So we have something called the Employment Assistance Cell, EAC. We conduct job fairs and drives of 350 plus we've conducted so far till date. We've had more than 20,000 candidates employed through our initiatives. We've got more than 200 plus employability
trainings, which include soft skill trainings and a lot of those things. 15,000 plus degree students have benefited from our initiatives as well. So those are the numbers on the employment assistance cell. Then we also take up a lot of scholarships and self-employment opportunities, and we've done more than 800 plus scholarships, higher education scholarships. We've had more than 750 plus orphans who have been educated through us. We want to increase that number going forward as well. And we have transformed more than 250 families by offering self-employment assistance, where they're able to run their own businesses and depend by themselves. And we have the AMP Resource Center, where we have more than 600 plus career counselors. We have 2,000 plus students who have been counseled on various academic domains. We've had more than 50 plus documents on career guidance seminar, which are of benefit to these students. And we have career charts that get planted. The idea is that we see at that level, at the school level, that students don't have clarity on what career they should take up. So we've developed a chart which gets distributed. So we've done 1,000 plus of that as well. In terms of awards and partnership, we've more than 280 plus renowned educationalists connected and awarded through our initiatives here. We have 30 plus partners for skill training of our members and job fairs, including state governments, so across India and also other countries. We have 50 plus partner NGOs for various programs who are associated with us on taking these things forward. To give you a bit of understanding on the reach of AMP, we have an on-ground presence in the field of 100 plus active chapters of AMP, which is spread across 25 states in India, and 25 states and 16 countries actually. So these 25 states, not only India, other states as well. And we have 6,000 plus active members who engage with us on a daily basis, who volunteer with us, who work along with us for our vision and our revision. We have and we are continuously growing, and we have an online presence of 125,000 plus members and professionals connected through our digital realms. So to know more about us, you can visit ampindia.org/join AMP if you would like to join AMP as a member. So that's it from me about the introduction of AMP. Please do visit our website to know more about us. I would like to now hand over the screen to Mr. Khalid, so that we can start with our today's session on the career guidance seminar. Khalid bhai, over to you. Okay, thank you very much. I welcome all the young blood to today's career guidance program, that too in the defense forces. Alhamdulillah, I am very much thankful to the AMP for having invited me to guide the new generation, especially for joining the armed forces, Indian armed forces. And I expect that I was told that around 80% the young blood will be attending, and remaining the parents and the teachers might have joined us. So I would say career selection is a very important task. In fact, it is the time after 10th and 12th, you have to decide a career जिसपे आपको ये देखना है कि आपकी जिंदगी, बाकिया जिंदगी का सफर उसी करियर के साथ में जुड़ना चाहिए. ऐसा करना ये बड़ी क्रूशियल एज होती है. इनफैक्ट 15 से लेके 25 साल की उम्र, इट्स अ वेरी क्रूशियल एज, जहां पे आपको अपने करियर का सिलेक्शन करना है और ये देखना है कि आप उस करियर में सक्सेस भी हासिल करते हैं. ये इस सिलसिले में जरा सा मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे दूं, बिकॉज डिफेंस सर्विसेज इज नॉट अ करियर कि वेरी ऑफन यू कैन चेंज इट. आफ्टर ज्वाइनिंग इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लीव, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर फॉर लीविंग इट. यू कैन नॉट जस्ट रिजाइन एंड वॉक आउट. तो डिफेंस में ज्वाइन करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप किस किस्म के करियर में आप बनाना चाहते हैं और आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं. और जनरली होता यह है कि ये यंग जनरेशंस को अंदाजा नहीं होता कि किस तरीके से करियर का सिलेक्शन करें. तो ब्रीफली आई जस्ट टेल यू
कि नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को कहा जाता है कि आप इंटरेस्ट के बेस पे अपना करियर सेलेक्ट करें, कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो उस चीज में, उस प्रोफेशन को आप अपनाएं, उस रास्ते में आप आगे जाएं, तो आपका करियर अच्छा बनेगा। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो अक्सर बेशतर चेंज होते जाते हैं, कि आज ये है इंटरेस्ट, कल कुछ दूसरा हो गया, और फिर तीसरा कुछ और हो गया। दूसरी चीज जो लोग बोलते हैं कि उसमें स्कोप कितना है, तरक्की कितनी है, इन टर्म्स ऑफ मनी कह लीजिए, या मतलब ये कि कितनी आप तरक्की कर सकते हैं उसके अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि स्कोप इसमें हर प्रोफेशन बेपनाह स्कोप है। बस ये साबित करने की जरूरत है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, यानी जिस चीज में जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, अगर आपने उनको डेवलप कर लिया है, तो उस चीज में अगर आप प्रोफेशन के तरीके से अख्तियार करेंगे तो यकीनन आप जो है कामयाब हो जाएंगे और आपको कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। तीसरी चीज ये होती है कि या तो फिर वालिदैन के कहने पे, या दोस्तों के कहने पे, या दूसरों की देखा देखी कुछ आप चूज कर लेते हैं कि वो जो है कॉमर्स में गया है तो मैं भी कॉमर्स में जाऊंगा, उसने ये सर्विस ज्वाइन की तो मैं भी ये सर्विस करूंगा, ये बिजनेस किया है तो वो बिजनेस हम करेंगे। तो दैट इज नॉट द करेक्ट आइडिया। बेसिकली जो करेक्ट डिसीजन आपको लेना है तो वो है आपकी एप्टीट्यूड के बेस पे। नंबर वन, कि आपको ये देखना है कि आपके अंदर वो सलाहियत, वो एप्टीट्यूड, वो एबिलिटी है कि नहीं, जो भी आप प्रोफेशन चूज करके जा रहे हैं वो उसमें सलाहियत है कि नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप वाकई किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो कल को अगर वही इंटरेस्टिंग चीज आपको 8 से 10 घंटे डेली करने को दी जाए तो क्या आप उसके साथ में टिक पाएंगे? ये सवाल अपने आप से आपको पूछना है और तय करना है कि किस तरीके से आप उसको कर पाएंगे। फिर ये कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके की पर्सनैलिटी है जो आपको उस प्रोफेशन से मैच करती है या नहीं। तीसरी चीज ये है कि फिर आपके अंदर इंटेलिजेंस, उस चीज से रिलेट करने की, उस चीज से बात करने की, यानी कि उस प्रोफेशन को आगे लेके जाने के लिए वो इतनी इंटेलिजेंस वगैरह है या नहीं है। फिर तीसरी चीज ये होती है कि अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें फाइनेंस मैटर करता है, आपके पेरेंट्स वेदर वो कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या आप कोई स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं कि नहीं। तो इन चीजों की बुनियाद पे आप जो है अपना करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। और देखने में ये आया कि 80% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या सलाहियत है और वो किस फील्ड में ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो पहले तो मेरा मशवरा ये है कि अपने आप को पहचानिए, अपनी सिफात को देखिए कि आपके अंदर किस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है, कि आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं या किसी और फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपको ये डिस्कवर करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अब आइए डिफेंस की तरफ। तो डिफेंस की तरफ जाने के लिए ये समझ लीजिए कि डिफेंस खुद अपने अंदर एक दुनिया है। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो खुद एक वर्ल्ड विद इन कह लीजिए आप उसको, किस तरीके का है उनका, कि वहां पे हर प्रोफेशन की जरूरत होती है तकरीबन। यानी कि इंजीनियर अगर आप बन रहे हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए स्कोप है, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के लिए भी स्कोप है, आप स्पोर्ट्स में बनना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत मौके हैं। हर चीज के लिए डिफेंस के अंदर फैसिलिटीज हैं। अब ये डिसाइड करना है आपको कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। डिफेंस में आगे बताने से पहले कि उसमें क्या क्या एंट्री पॉइंट्स है और किस तरीके से लोग डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कुछ डाउट्स लोगों के जहन में आते हैं कि डिफेंस में जाने का मतलब ये हुआ या किसी भी आर्म फोर्सेस में जाने का मतलब ये हो गया कि वहां पे मर जाएंगे या कुछ होगा। भाई मौत तो सबको आनी ही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप डिफेंस में जाएंगे तो वहीं पे गोली खा के ही मरेंगे, बल्कि वो मौत जिसमें आप गोली खा के मरे वो तो शहीद की मौत होती है और वो तो बाकी एक सेलिब्रिटी के हिसाब से होती है। अगर आदाद शुमार में हम जाएं और नंबर्स पे अगर हम देखने जाएं तो वी सी कि इन द रोड एक्सीडेंट्स ईयरली इन इंडिया अलोन 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, जबकि वो सड़क पे उनकी कोई गिनती नहीं होती। जबकि अगर हमारे कुछ जवान सरहद पे अगर शहीद होते हैं तो पूरा मुल्क उनके गम में शरीक होता है और उनको एज ए हीरो उनको तस्लीम किया जाता है। तो दिस इज समथिंग हीरोइक डेथ। तो वो एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर कुछ लोगों को शक ये होता है कि डिफेंस में डिसिप्लिन बहुत है और डिसिप्लिन टेक्स अवे फ्रीडम। ऐसा लगता है कि जैसे डिसिप्लिन में अगर जाएंगे तो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी, बल्कि नहीं, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। मिसाल के तौर पे अगर हम आपको फ्रीडम दे दें कि ठीक है आप ट्रैफिक पे जब आप रोड पे चल रहे हैं तो आप जिस तरीके से चाहें, जिस तरफ चाहें, जैसे चाहे लेफ्ट की जगह राइट में चले जाए, जंक्शन पे जहां से चाहे जैसे चाहे निकाल के ले जाए, तो क्या होगा? थोड़ी ही देर में
चौराहे के ऊपर बेपनाह रश हो जाएगा, लोग चारों तरफ से आ जाएंगे और इट विल बी अ वेरी कैओटिक कंडीशन कि जहाँ पे किसी का भी कोई हल होने वाला नहीं है। और डिसिप्लिन से अगर हम लोग सिग्नल्स को फॉलो करते हुए, जो रोड के रूल्स हैं अगर उसको हम फॉलो करते हुए, लेफ्ट एंड राइट का और ओवरटेकिंग रूल्स अगर हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो उसमें सभी को आसानी होती है और सभी लोग अपनी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें किसी किस्म की वो बात नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें कैसे क्या कर पाएंगे। नाउ अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ क्योंकि टाइम इज गिवन, वेरी लिमिटेड टाइम इज देयर। तो लेट मी सी कि डिफेंस में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, सैलरीज क्या होती है। तो मैं जरा से इसका ये बता दूं कि डिफेंस में बहुत फैसिलिटीज। पहली चीज तो ये कि साल में 2 महीने की आपको एनुअल लीव मिलती है, जो कि जनरली किसी और प्रोफेशन में इतनी लंबी छुट्टी आपको नहीं मिलती है। फिर 20 डेज की जो है आपको कैजुअल लीव मिलती है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज रहती है। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाउंसेस बहुत मिलते हैं। फिर ट्रैवलिंग में अगर आप बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें 50% कंसेशन आपको हर टाइम मिलेगा, या अगर ट्रेन से आप सफर कर रहे हैं तो विद फैमिली आपको जो है घर तक के, आपको होम टाउन से लेकर ड्यूटी स्टेशन तक जो है आपका फ्री टिकट रहेगा फैमिली के साथ में आने जाने का। और साल में अगर दोबारा भी आपको आना जाना पड़े तो उसके लिए भी 50% कंसेशन आपको रेलवे से मिलता है। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटीज हैं, क्वार्टर की फैसिलिटी है, बैंगलो है, गाड़ी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और सबसे बड़ी बात ये कि यूनिफॉर्म में आप खुद एक प्राउड फील करते हैं, यू आर डायरेक्टली सर्विंग द नेशन। और ये फीलिंग जो है आपको बहुत अच्छा मोरल और बहुत कॉन्फिडेंट बना देती है कि यू आर डायरेक्टली सर्विंग द नेशन, और कोई उसमें मतलब ये कि साइड वेज का रास्ता नहीं है। फिर दूसरी चीज ये है कि उसमें एजुकेशन के बहुत चांसेस है, यानी कि आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, 1 ईयर स्टडी, 2 ईयर्स स्टडी लीव मिलती है उसमें आपकी चॉइस के हिसाब से, पेड लीव, जो कि और प्रोफेशंस में आपको नहीं मिलती। फिर आप जहां चाहें, जिस तरीके से चाहें, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से या जिस तरीके से भी आप अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। और फिर अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्पोर्ट्स के बहुत मौके हैं। यानी कि मैं खुद भी एयरफोर्स में रहा हूँ, 15 साल मैंने सर्विस की है, और मैं हॉकी प्लेयर था। और क्या नाम, सिविल में इतना ज्यादा मतलब कॉलेज टीम के हम कैप्टन वगैरह रहे हैं अपने, लेकिन जब डिफेंस में गए हैं तो वहां पे इमीडिएटली मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई रियली गॉट एक्सपोजर। तो जूनियर इंडिया तक खेलने का मौका मिला। फिर इंडियन एयरफोर्स की टीम मैंने कई साल तक रिप्रेजेंट किया। तो यू गेट मतलब ये कि आप अपनी जो टैलेंट को है, अपने शौक को है, अपने गेम्स को, स्पोर्ट्स को निखारने का मौका मिलता है। और कोई भी स्पोर्ट्स का आप नाम लीजिए, माउंटेनिंग लीजिए, गोल्फ लीजिए, हॉर्स राइडिंग लीजिए, आप टेनिस लीजिए, कोई भी गेम आप लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, तमाम गेम्स जो है सर्विसेज में मौजूद है। अगर आपने खेल का शौक है और आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपना फैसिलिटीज हैं। फिर न सिर्फ यहाँ इन इंडिया बल्कि आप फॉरेन अब्रॉड भी आपको इसको खेलने का मौका मिलता है। फिर इसके अलावा जो है ये कि सिलेक्शन जो है इसका काफी इजी भी है और कई लिहाज से बहुत मुश्किल भी है। तो इसके कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा। जैसे होता यह है कि अक्सर ये भी देखा गया है कि जो हमारे शहर से कुछ लोग जो गए सिलेक्शन वगैरह के लिए और जब लौट के आए तो कहेंगे नहीं बहुत मुश्किल है टेस्ट और वहाँ पे हो नहीं सकता है फलाना ढिमाका। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हमारे वालिद ने तो ये कहा था कि आप अपने एक्सपोजर के लिए अभी नाउ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड सो यू स्टार्ट अपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। तो उन्होंने फॉर्म वगैरह भरवा दिया सिंस ही न्यू दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एयरफोर्स। तो उसका फॉर्म भरवाया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन आई गॉट थ्रू। तो जब सब इतना सब कुछ हो गया तो देन माय फादर सेड ओके जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हमने तो खैर एग्जाम बहुत दिया ही नहीं, पहले एग्जाम में अपना निकल गए। तो ये एक एक्सपोजर की बात थी। लेकिन इसमें एग्जाम के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे आईएएस का एग्जाम ले लीजिए आप। आईएएस में नॉर्मली 9 to 10 लाख लोग जो हैं उसमें अप्लाई करते हैं क्या नाम प्रीलिम्स के लिए। अब उसमें से जो अभी लास्ट ईयर 2 साल पहले का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको कि उसमें तकरीबन 9 लाख आदमियों ने उसमें अप्लाई किया था आईएएस के एग्जाम में। लेकिन उसमें से नियरली 7 लाख ने जो था अपना हॉल टिकट डाउनलोड किया और उसमें से तकरीबन 4.5 लाख लोग जो थे अपियर किए प्रीलिम्स में। उसमें से तकरीबन 17-18 हज़ार लोग जो थे वो प्रीलिम्स पास करके मेन में आए। और मेंस में जब पास हो करके तकरीबन जो कुछ लोग बचे तो वो तकरीबन मोर देन 1100 समथिंग नंबर था। फाइनल सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के बाद में। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इट इज लेस देन 1%। लेकिन नंबर ऑफ पीपल अगर आप देखें
तो ये बहुत बड़ी फिगर्स हो जाती है। इसी तरीके से एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि द बेहतरीन तरीका जो मतलब एंट्री पॉइंट है डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, वो है एनडीए। तो एनडीए में भी पिछले साल तकरीबन 5 लाख बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था, लेकिन जिसमें से जब हॉल टिकट डाउनलोड करने की बात आई तो उसमें तकरीबन 3 लाख बच्चों ने हॉल टिकट डाउनलोड किया, यानी कि 3 लाख बच्चों ने उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब उसका हम फाइनली देखने गए तो उसको तकरीबन 30-40 हज़ार के करीब बच्चे जो थे उसमें से रिटन एग्जाम में पास हुए। और फिर उनको जो था वहाँ पे हमने उसको एसएसबी में गए, एसएसबी में वहाँ से जो पास होकर के आए तो वो बहुत ही कम बच्चे, यानी कि तकरीबन 500-700 लड़कों को उसमें सेलेक्ट किया गया। कहने का मतलब क्या है कि उसमें अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो है सिर्फ 1.5 साल के हिसाब से भर देती है फॉर्म, कि इतने नंबर्स चले गए, इतने लोगों को हमें अप्लाई करना है, तो उन्होंने इतने बड़े लेवल पे अप्लाई कर दिया। लेकिन उसमें बहुत से लोग जो सीरियस ना होने की वजह से पूरी तैयारी नहीं करते हैं, इस वजह से उसका एग्जाम की तैयारी ना करने की वजह से एग्जाम तक में नहीं बैठते, यानी हॉल टिकट तक वो डाउनलोड नहीं करते हैं। और फिर जो जाते भी हैं तो वो हाफ हार्टेड या हाफ प्रिपेयर्ड जाते हैं, और उसमें से अगर देखा जाए तो मुश्किल से चंद हजार लोग जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ में एग्जाम में अपियर करते हैं। जो लोग पूरी तैयारी से अपियर करते हैं उनके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो कंपटीशन जो है वो कुछ चंद हजार बच्चों में ही होता है, जबकि एप्लीकेशंस जो है वो लाखों में होती है। सेम इज द केस विद द सीरियस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें भी ऐसे ही होता है। लेकिन ये है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं और अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं और आपने एक फैसला कर लिया है कि आपको डिफेंस ज्वाइन करना है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो इसके कुछ तरीके हैं, कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं और क्या क्या तरीके अख्तियार किया जा सकते हैं। एक तो ये कि कहा जाता है कि हार्ड वर्क जो है, जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे उससे आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये जरूरी नहीं है आप कम हार्ड वर्क करें, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन में आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। यानी कि अगर 20% भी आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए हैं तो आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा। जबकि अगर आप 80% हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको 20% रिजल्ट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी डायरेक्शन गलत है। तो ये मान के चलिए कि आपका डायरेक्शन अगर सही है, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है, वो लगन है, वो बर्निंग डिजायर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यू कैन ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ योर चॉइस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। वेल, अभी जो हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इसमें मतलब ये कि तीनों सर्विसेज के लिए 12th के बाद में, यानी कि 10+2 के बाद में जो एंट्री पॉइंट्स है वो 2 जगह पे हैं और जो कॉमन है सबके लिए, यानी कि एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम है इंडिया का, और ये साल में 2 मरतबा होता है। और इसके लिए उम्र जो है आपके 16.5 से लेकर के 19.5 ईयर्स तक बच्चों की एज होनी चाहिए। और जो एयरफोर्स और नेवी में जाते हैं उनके लिए 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो वो आर्मी आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में जो है उनके लिए जाना मुश्किल है। तो यहाँ जाने के लिए जब वो एग्जाम के लिए बैठे तो उसमें वो अपेयर कर सकते हैं एग्जाम। साल में 2 मरतबा इसके एग्जाम होते हैं, नवंबर दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में इसका निकलती हैं वैकेंसीज और जून जुलाई में इसकी वैकेंसीज निकलती है। आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू या जो एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट्स हैं और तमाम जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको पब्लिसिटी करती है। एंड दोज हु आर एलिजिबल कैंडिडेट्स वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई करते हैं, गर्ल्स के लिए इसमें कोई चांस नहीं है। तो इसी तरीके से सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये भी तीनों सर्विसेज के लिए कंबाइंड तरीके से किया जाता है। एनडीए के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए 4 साल की ट्रेनिंग जो है खड़गवासला पुणे में होती है, और उसके बाद में जो रिस्पेक्टिव विंग आपने जिस फोर्स जो आपने चूज की है, आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स, फर्दर ट्रेनिंग के लिए उनको वहां भेज दिया जाता है। इसी तरीके से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम जो है वो भी रिटन एग्जाम होता है और तीनों सर्विसेज के लिए होता है। इसमें कंडीशन जो है वो ग्रेजुएशन की है। जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके लिए ये आप जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और तीनों सर्विसेज के लिए ये भी कॉमन एग्जाम है। और इसमें जो एज है वो बच्चों की एज जो है वो 19 से लेकर के 24 ईयर्स ऑफ एज के जो नौजवान हैं वो इसमें सीडीएस के एग्जाम में ज्वाइन कर सकते हैं।
तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊं कि ये दो तो कॉमन टेस्ट हो गए, इसके अलावा भी बहुत सी एंट्री पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी जगह निकलती हैं, और उसमें भी जो है लोग अप्लाई करके डायरेक्टली कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी का रोल जो है वो मेन आर्मी को बैकअप करने का रोल है, यानी कि उसको एक तरीके से बैकअप करने के लिए अगर मेन वॉर होती है तो वो टेरिटोरियल आर्मी पीछे आ जाती है और मेन आर्मी जो है उसको टेक ओवर कर लेती है। इसी तरीके से टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है वो भी होती है, और टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है 10+2 के बाद में होती है इसमें आर्मी के लिए, और इसमें लेकिन फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, जिसमें 70% मार्क्स भी होना कंपलसरी है। एज वही आपकी 19 तक होना चाहिए, 19 ईयर्स तक, और उसके साथ में जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स कराया जाएगा, और 1 साल की ट्रेनिंग जो है IIM देहरादून में वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है उनको, ताकि वो आर्मी के तरीकों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो सके। इसके बाद में यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत जो फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके डायरेक्टली वो जो है ऑफिसर के लिए बन सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। फिर होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल आर्म जो है उसमें भी ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं आर्मी के लिए, और इसमें डायरेक्टली वो जो है ज्वाइन करके शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो है वो 10 to 14 ईयर्स की सर्विस के लिए जाना पड़ता है उसमें, और उसके बाद में उनको या तो रिजाइन करके छोड़ दें आफ्टर 10 ईयर्स, या खुद ही प्रीमेच्योर उनको वहां से रिलीव कर दिया जाता है। उसके बाद में आती है जज एडवोकेट जनरल, यानी कि इसमें जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज जो है 26 ईयर्स तक है मैक्सिमम, तो और ये के बार काउंसिल से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। अब आइए नेवी के लिए। नेवी में भी 10+2 बीटेक के लिए एंट्री है। यहाँ भी PCM में 70% मार्क्स होना जरूरी है, और उनकी उम्र जो है वो भी 17 से 19 साल के बीच में होना चाहिए, और ये भी बच्चे जो सिलेक्ट होकर के डायरेक्ट उनको बीटेक का कोर्स करना पड़ता है नेवल एकेडमी में, और फिर उसके बाद में उनको कमीशन दिया जाता है, और नेवी में एज ए ऑफिसर दे कैन ज्वाइन इट। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यानी कि इसमें भी जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन अप्लाई इन द फाइनल ईयर एंड दे कैन बिकम द ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। फिर एक इसके साथ में नेवी में NCC स्पेशल एंट्री स्कीम आती है, यानी कि NCC की जो जिनके पास C सर्टिफिकेट है विद B ग्रेड, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डायरेक्टली यानी कि विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन दे गो फॉर द SSB, एंड आफ्टर गेटिंग थ्रू द SSB दे ज्वाइन एज एन ऑफिसर इन द नेवी। और गर्ल्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें जिसमें कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, एजुकेशन ब्रांच होती है, और इंजीनियरिंग ब्रांच, ये 3 जो कैटेगरीज हैं, इसमें जो है जो गर्ल्स हैं वो भी दे कैन ज्वाइन इन द नेवी। और ये जो IAF नाउ इंडियन एयरफोर्स में बताऊं मैं आपको कि इसमें भी एडिशनल यानी कि NDA और CDS के अलावा 3 और एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से वो एंट्री ले सकते हैं। एक तो होता है AFCAT, एयरफोर्स का, जो इसमें लड़कियां और लड़के दोनों इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एज जो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए इसमें जो एज है उसमें 20 से 24 साल है, और जो एडमिन ब्रांच या दूसरी ब्रांचेस हैं एयरफोर्स की, उसके लिए 20 से लेकर के 26 साल की एज लिमिट है जिसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स में भी NCC स्पेशल एंट्री है, जिनके पास एयरविंग C सर्टिफिकेट है विद B ग्रेड, तो वो डायरेक्टली SSB जा करके वहां से उसको क्वालिफाई करके आगे निकल सकते हैं। और तीसरी जो एंट्री पॉइंट है वो है मेट डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें सिर्फ साइंस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी एज शुड बी नॉट मोर देन 20 to 26 ईयर्स। ये तमाम जो वैकेंसीज मैंने बताई हैं, ये मुख्तलिफ तरीके हैं इसमें डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए ऑफिसर कैडर में। इसलिए मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये एग्जाम किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे एग्जाम से। ये इसमें समझने की बात ये है कि आप जब भी रिटन एग्जामिनेशन पढ़ते हैं, तो CDS हो या NDA हो, तो उसमें जहाँ पे आपके लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और साइंस के और जो
दूसरे जीके वगैरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको हल करने के बाद में आप जो पासिंग होते हैं, तो उनको तमाम जो जितने पासिंग कैंडिडेट्स हैं उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, दैट इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जो है उनका तकरीबन 5 दिन का प्रोग्राम रहता है। वहाँ पे कैंडिडेट्स को बुला करके उनको वहीं पे रहना पड़ता है। एसएसबी जो उसका जो एरिया है वहीं पे उनको रहने के लिए दिया जाता है और 24 आवर्स वहीं पे रहते हैं वो। और 5 दिन के इस टेस्ट में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। तो उसका मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा कि एसएसबी जो लोग ज्वाइन करते हैं या जाते हैं वो उसके लिए तैयारी करना कितना जरूरी है। ये जो एनडीए और सीडीएस या दूसरे एग्जाम्स हैं इसको आप अपने तौर पे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसके लिए कुछ कोचिंग लेनी जाए। और कोचिंग के लिए पुणे वगैरह में, मुंबई में भी कुछ एक हैं इंस्टीट्यूट्स, लेकिन पुणे में काफ़ी हैं इंस्टीट्यूट्स। और एनडीए के लिए एक स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर अनीस कुट्टी साहब, अनीस क्लासेस, जो कि पुणे में है और उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। हर साल उनके बहुत से कैंडिडेट जो हैं एनडीए में पास होते हैं। तो उनके थ्रू अगर आप 11th-12th में अगर उनसे कोचिंग ले लें तो ये एग्जाम पास करना, क्रैक करना इट बिकम्स वेरी इजी फॉर। इसी तरीके से जो एसएसबी की कोचिंग है वो पुणे में भी है, लेकिन इसके अलावा जो चंडीगढ़ में है, जो एक काफ़ी पुरानी एकेडमी है, मिनर्वा एकेडमी, वहाँ से भी कोचिंग ली जा सकती है। इसका ज़रा सा मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्सेस दूंगा कि एसएसबी एक्चुअली क्या चीज़ होती है और इसको किस तरीके से हम जो है मतलब ये थोड़ा सा उसको समझ लेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल जाएगा, तो यू विल कम टू नो। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में मेनली वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखते हैं। आपकी नॉलेज जो है वो रिटन एग्जाम में या जो भी थी आपकी एक एवरेज पर्सन के हिसाब से वो उतनी वहां के लिए काफी है, लेकिन वहां आपको एज एन एवरेज पर्सन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है वो देखी जाती हैं। और उसके बहुत ही यूनिक तरीके हैं जिसको समझना बहुत आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं आपको जरा सा दिखाऊंगा कि ये एसएसबी का क्या सिस्टम है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए ये मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये एसएसबी का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जी, इसमें देखिए फर्स्ट डे में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्या होता है कि सबको, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम मतलब जो जिस भी एसएसबी से, तकरीबन काफ़ी एसएसबी हैं और एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स भी हैं, तो वहाँ पे आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा कि सुबह 6 बजे या 7 बजे आपको स्टेशन पर वहाँ पे मिलना है। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा एसएसबी का, वो आपको लेने के लिए आ जाएगा कि आप रेलवे स्टेशन पे आए हैं। ये उसी किस्म की कुछ तस्वीर हैं जो आप देख सकते हैं कि अराइवल एट द रेलवे स्टेशन में क्या पोजीशन होती है। और फिर वहाँ से जो बच्चों को लेके फिर जो बसेस आती हैं एसएसबी से, उनसे उनको बोर्डिंग करके जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जहाँ पे ऑफिस है वहाँ लेके जाते हैं। और बिफोर द स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वहाँ पे उनकी रोल कॉल होती है कि जिन बच्चों को बुलाया था, जिन स्टूडेंट्स को बुलाया था वो सब आए हैं या नहीं। और फिर जब उनकी रोल कॉल कंप्लीट करने के बाद में ये जो एक छोटा सा शेड्यूल बताया है कि किस तरीके से 5 दिन का शेड्यूल है। इसमें फर्स्ट डे में स्क्रीनिंग टेस्ट में जो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों किस्म के टेस्ट इसमें होते हैं। और फिर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है जिसमें पिक्चर देख करके कुछ स्टोरी लिखना पड़ती है, कुछ उसको डिस्कस करना पड़ता है। और फिर उस स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट जो है वो उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में, और नॉर्मली देखा ये गया है कि तकरीबन 50% लोग जो हैं उसी दिन वापस भेज दिए जाते हैं और शाम की दूसरी बस से वो उन तमाम कैंडिडेट्स को जो स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनको स्टेशन पे दोबारा ड्रॉप कर दिया जाता है कि किस तरीके से जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं स्क्रीनिंग इंटेलिजेंस टेस्ट में, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट में, तो फिर इसके बाद में ये परसेप्शन टेस्ट है कि इसमें कोई भी ऐसी वेग तस्वीर दिखाई जाएगी जिसको आपको देख करके कुछ अंदाजा लगाना है और इसकी स्टोरी पीछे से शुरू करना है और बताना यह है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है और इसका एंड क्या होने वाला है। इसमें आपकी इमेजिनेशन पावर जो है बच्चों की, वो सामने आती है कि किस तरीके से उनको ये समझना है। और रिजल्ट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो उसी दिन डिक्लेयर किया जाता है
और जो लोग फेल हो जाते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको जो है स्टेशन पर वापस भेज दिया जाता है। और बकिया जो लोग बचते हैं उनको बकिया 4 दिन रोकने के लिए वहीं पे उनको रोका जाता है कि बाकी का टेस्ट देंगे, और दूसरे दिन से उनके साइकोलॉजी टेस्ट शुरू किए जाते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट में ये जो आप देख रहे हैं कि ये स्टोरी राइटिंग टेस्ट है, यानी कि इसमें कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको एक स्टोरी क्रिएट करके आपको विद इन 3 to 4 मिनट्स यू हैव टू राइट ए स्टोरी, और इसमें ताकि आपकी जो इमेजिनेशन और आपकी सोच के पॉजिटिव और नेगेटिव वो बहुत सी चीजें हैं वहाँ पे असेस की जाती हैं। इट इज प्योरली साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो इसमें आपको कुछ वो नहीं है। फिर दूसरी चीज मिलती है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको लिखने का टाइम जो है मैक्सिमम 20 सेकेंड्स मिलेंगे, जिसमें आपको एक सेंटेंस एक देख करके और उसको आपको सेंटेंस बना करके लिखना है। मिसाल के तौर पर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो वर्ड आपको मिला उसको देखते ही आपके जहन में क्या सेंटेंस स्ट्राइक हुआ, रोज इज ब्यूटीफुल, या जो कुछ भी आपकी चीज है, या अगली लफ्ज अगली पे आपको एक सेंटेंस बनाना है। इस तरीके से तकरीबन 60 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और टाइम इज वेरी शॉर्ट, वन आफ्टर अनदर यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स कि आपने क्या सेंटेंस बनाया है। सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि आप किस तरीके से आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद में होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि सिचुएशन रिएक्शन में ये बताते हैं कौन सी सिचुएशन में आपने कितनी जल्दी क्या रिएक्शन किया, और कोई डिफरेंट सिचुएशंस नहीं होती, बहुत नॉर्मल डे टू डे वाली जो आमतौर पे जिंदगी में आती है सिचुएशंस, उसमें नॉर्मल रिएक्शन इंसान का क्या हो सकता है और आपने क्या उसमें रिएक्शन किया, वो चीज वहां पे जो है वो चेक की जाती है कि आपका जो रिएक्शन है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो कितना नॉर्मल है। फिर आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एंड दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप खुद अपने बारे में क्या समझते हैं, अपने बारे में आपकी राय क्या है, वो आपको एक 4-5 मिनट के अंदर एक स्केच लिखना पड़ता है कि मैं अपने आप को ये समझता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, दिस टाइप ऑफ पर्सन। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो एसएसबी में हैं, उनको समझने के लिए बहुत इजी होता है कि आप खुद के बारे में कितना जानते हैं और जो आप टेस्ट वहां पे दे रहे हैं उससे आपकी हकीकी पर्सनैलिटी कितना मैच करती है। तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट है। फिर उसके बाद में तो होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क, यानी कि इसमें जो है 3rd and 4th डे के अंदर जो है जो जीटीओ रहते हैं उसका जो आपको ग्राउंड लेवल पर फिजिकल कुछ टास्क दिए जाते हैं, और वहां पे वो आपकी एबिलिटी, आपकी मिंगलिंग अप, आपकी डिफरेंट क्वालिटीज जो हैं वो असेस करते हैं कि आप में ये सारी क्वालिटीज हैं कि नहीं। नॉलेज से ज्यादा यहाँ पे आपकी एबिलिटी, क्वालिटीज जो है उसको वहां पे चेक किया जाता है। इसमें जैसे फर्स्ट डे के अंदर आपको बताया जाएगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में कोई एक टॉपिक वो जीटीओ जो है वो अनाउंस करेंगे, एंड आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि यू विल बी डिस्कसिंग दिस पार्ट फॉर 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स यू हैव टू डिस्कस, एंड द ग्रुप ऑफ 10 और 15 बॉयज जो है वो एक जगह पे रहेगा जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और उसमें जैसे मिसाल के तौर पे कि एट द टाइम ऑफ योर मैरिज व्हाट विल यू सिलेक्ट, ब्यूटी, मनी और कैरियर। तो इसमें आपको जो है बहुत तेजी के साथ में डिसीजन लेना है और अपने ग्रुप को मतलब ये कि डिस्कस करना है ये सारी चीजें। तो जो भी आपके थॉट्स हैं उसमें वो ये देखते हैं कि ग्रुप आपसे कितना मुत्तफिक है, या आप बोल पा रहे हैं ग्रुप में या नहीं, या और कोई मतलब ये कि रिएक्शंस क्या है, आप खुद अपनी जगह बना पाने में कामयाब हैं या नहीं। तो बहुत सी चीजें जो है इसमें लीडरशिप क्वालिटीज के ताल्लुक से काफी कुछ सामने आता है कि आप क्या क्या कर सके और क्या नहीं कर पाए। इसी तरीके से ये ग्रुप डिस्कशन दूसरा है, कहीं पे भी लिया जा सकता है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि जीटीओ जो है बैठे हुए हैं, हालांकि सिविल ड्रेस में है लेकिन ये सब यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, और लेकिन यहाँ पे चूंकि टेस्टिंग हो रही है और तमाम लोगों के आप देख सकते हैं कि सबको चेस्ट नंबर्स दिए हुए हैं। वहाँ पे नाम से कोई किसी को एड्रेस नहीं करता, बल्कि जो चेस्ट नंबर आपके दिया हुआ है जैसे 20 है, 36 है, 29 है, तो उस चेस्ट नंबर से एक दूसरे को एड्रेस किया जाता है। और सब लोग मुख्तलिफ जगहों से आए हुए होते हैं, इसलिए पहचानना भी मुश्किल रहता है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। ओके, तो ये ग्रुप डिस्कशन की दूसरी तस्वीर है। इसी तरीके से ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, यानी ये कोई एक्सरसाइज, कोई प्रॉब्लम है जो आपके सामने रखी गई है, एंड एज ए ग्रुप यू आर वर्किंग एज ए टीम। नाउ यू हैव टू वर्क आउट सर्टेन टारगेट जो आपको अचीव करना है, और वो ग्रुप के साथ में बैठ के आपको करना है कि
हाउ विल यू मेक ए प्लान एंड हाउ विल यू एग्जीक्यूट इट, ताकि वो आपका जो प्लानिंग है, जो आपका हल है, वो पूरी तरीके से हासिल हो जाए। अब यहाँ पर भी वो लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं कि आपके आइडियाज कितने कंसर्निंग हैं, वेदर आपके जो टीम मेंबर हैं आपके साथ में आने वाले हैं या नहीं, वेदर आप लेके चल सकते हैं सबको, या अपने आप बहुत ही जिद्दी नेचर के हैं, ऑब्स्टिनेट हैं। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो वहाँ पे इसमें नोट की जाती हैं कि ग्रुप प्लानिंग में क्या क्या हो सकता है। और ये मुख्तलिफ जो है तस्वीर जो है इस तरीके से बताया जाता है कि एक्सप्लेन किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है और आपको ये टास्क इस तरीके से करना है, और यहाँ पे दुश्मन है या खतरात हैं, उससे आप कैसे निकलेंगे, इस तरीके से। फिर ये ग्राउंड पे जीपीओ टास्क होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी सी ऑब्स्टिकल्स दी गई और कुछ इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जैसे 1 या 2 प्लैंक दे देते हैं, एक आध बाम्बू टाइप रॉड होती है, और एक रोप होती है, रस्सी होती है, जिसके साथ में मतलब साथ में लेके जाना, एक आध ड्रम होता है, और वो सब चीजें लेकर के आपको अपनी टीम के साथ में फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू दूसरी ऑब्स्टिकल तक आपको जाना है, और जिसमें जमीन जो है वो आउट ऑफ बाउंड होती है, यानी कि जमीन को आप टच नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको ये सारी चीजें दी जाती हैं, और जो प्लैंक्स होते हैं या जो रॉड या बल्ली वगैरह आपको दी जाती है, वो इस तरीके से होती है कि वो एक जगह से अगर आप दूसरी जगह रखें तो वो कुछ ना कुछ शॉर्ट हो जाती है, यानी कि 1 फीट छोटी दे देंगे आप, और वहां पे आप अपना दिमाग इस्तेमाल करिए कि किस तरीके से उसको आगे लेके जाना है। तो ये इस तरीके से पूरी ब्रीफिंग की जाती है स्टूडेंट्स को कि क्या टास्क है और किस तरीके से उनको लेके जाना है और कैसे आगे बढ़ना है। और इसी में एक बहुत सी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप टास्क हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में होता यह है कि शुरू में कुछ ऑब्स्टिकल्स जो हैं ईजी होती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट होती चली जाती है, और वहां पे आपका जो है टेस्टिंग टाइम जो है वो बढ़ता चला जाता है। ये इसके बाद में भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होती हैं कि अगर आप अकेले हैं तो उस तरीके में ये ऑब्स्टिकल है, आप किस तरीके से उसको पार करेंगे, कर पाएंगे या नहीं, आपके अंदर हिम्मत कितनी है, कितना कॉन्फिडेंस है, वो तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से कमांड टास्क, यानी कि 4-5 या 10 लड़कों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, यू बिकम ए कमांडर एंड यू हैव टू गिव द कमांड्स टू देम। वो अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, और आपको वो काम करवा के उनसे लेना है। दैट इज कॉल्ड कमांड टास्क। उसमें आपकी कमांडिंग एबिलिटी, यानी कि वेदर यू कैन कमांड द पीपल और नो, वो वहां पे चेक किया जाता है कि किस तरीके से आप इसको अपने काम को करवा सकते हैं एज ए कमांडर। फिर हाफ ग्रुप टास्क, अब उसी ग्रुप को जहाँ पे 10 लड़के थे तो उनको हाफ कर दिया जाता है कि 5-5 लोग अगर करने जाएंगे तो वो किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ज्यादा लोग होते हैं तो उनको कमांड करना मुश्किल हो जाता है, और कम लोग होते हैं तो इट बिकम्स इजी टू कोऑर्डिनेट, और आप आसानी से उसको आगे जा करके ले जा सकते हैं। फिर ये जीटीओ का एक्सप्लेनेशन है इस तरीके का, और ये इंडिविजुअल टास्क इसी तरीके से आपको डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको अकेले करनी है और फिजिकल फिटनेस के साथ भी करनी है। तो ये जो है इस तरीके की जाने के बाद में फिर एक लेक्चरेट जो होता है, लेक्चरेट पे क्या है कि आपके अंदर स्पीकिंग स्किल कितनी है। यहाँ पर भी तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, 3 मिनट का टाइम देते हैं, यानी कि 3 मिनट आपको प्रिपरेशन करनी है, और उस 3 मिनट की प्रिपरेशन के बाद में आपको 3 मिनट अपने ग्रुप के सामने आकर के बोलना है कि आपने उसमें से जो भी 4 टॉपिक्स दिए गए थे उसमें जो भी आपने सिलेक्शन किया है वो टॉपिक अनाउंस करना है, और उसके ऊपर अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके अच्छे से बोलना है। तो उसमें ये पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, whether you can communicate well, can convince the people or no. तो this is something very interesting. And then final group task आता है जिसमें बच्चे लोग जो हैं फाइनल एक ग्रुप को लेके चलते हैं, वहां पर भी वो देखा जाता है। लास्ट हर्डल जो आती है, हर्डल कह लीजिए या उसको लास्ट असेसमेंट कह लीजिए, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू विद द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उनके प्रेसिडेंट के साथ में इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में वो जहाँ पूरी चीजें असेस करते हैं आपकी पर्सनालिटी को, वहीं पे कुछ ऑब्स्टेकल और ऑन द स्पॉट आपका असेसमेंट भी लेते हैं। कोई भी सिचुएशन दे करके, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम दे करके उसका हल आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कि अभी इसमें आप देख रहे हैं तस्वीर में कि ये जो कैंडिडेट का बोर्ड है, ये रूम है। देखिए प्रेसिडेंट की चेयर से जो कैंडिडेट बैठे हैं वो काफी डिस्टेंस पे है, और उसमें जब वहां पे रूम में एंट्री लेते हैं कैंडिडेट तो उसको कुछ चल के जाना पड़ता है अपनी चेयर तक, और चेयर पे जाकर के जब वो बैठेगा तो फुल बॉडी एक्सपोजर जो है वो प्रेसिडेंट के सामने होता है,
और प्रेसिडेंट उसको आसानी से पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आप किस तरीके से बैठे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप कितना सोच रहे हैं, आपके गैर जरूरी मूवमेंट तो नहीं है, तो ये तमाम चीजें देखने के बाद में वो कुछ सवाल वगैरह आपसे करते हैं। और सवाल भी मुश्किल नहीं होते, जो आपने अपने इंफॉर्मेशन जो फॉर्म भरा है आपका इनिशियली, उसमें जो जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसी चीज से वो आपसे सवालात करते हैं। जो जिस शहर से भी आप आए हैं, जिस जगह से भी आप आए हैं, अगर वहाँ पे उसके ताल्लुक से वो सवाल करेंगे। हालांकि वो अगर गए भी होंगे तो भी ये बोलेंगे कि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के बारे में आप मुझे बताइए कि वहाँ की क्या चीज़ फेमस है, या वो शहर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की बिजनेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर जो है वो उसके आपके सामने आती हैं। जैसे मैं जब इंटरव्यू के लिए किया था तो मेरे सामने एक सिचुएशन रख दी उन्होंने कि सपोज यू आर टेकिंग 50 people for the Republic Day parade to Delhi and you are going by train and you are all फौजी और आपके पास हथियार भी हैं, राइफल्स वगैरह हैं, एंड यू आर स्लीपिंग इन द कोच, जो आपकी कोच है, कंपार्टमेंट है ट्रेन का, आप उसमें सो रहे हैं। रात को अराउंड 3 o'clock नाइट में कुछ रॉबर्स जो है वो एंट्री ले लेते हैं, और वो एंट्री लेकर के उनके पास गन्स हैं, और वो आपसे कहते हैं, उठाते हैं सबको और कहते हैं कि अपना अपना प्रेशियस मॉल जो है आप हमको दे दीजिए, जो भी आपकी कीमती चीजें हैं हमें दे दीजिए। तो ऐसी सूरत में, एंड यू बीइंग ए कमांडर, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इट वाज पोज्ड टू मी। तो मैंने उनसे कहा कि सर, इफ दैट इज द सिचुएशन, बिकॉज वी आर ऑल स्लीपिंग एंड दे हैव टेकन द पोजीशन विद गन्स, so I'll ask my boys to hand over everything to them, whatever they have, and because we will not be in a position to fight. Then he said कि ये तो मतलब ये कि आप यू आर ए फौजी और आप इस तरीके से वो करेंगे तो कैसे चलेगा मामला, तो आप तो फाइट भी कर सकते हैं। Then I told him कि भाई सर, वी आर ऑल स्लीपिंग, और वो अपनी पोजीशन लेके खड़े हो चुके हैं। अगर हम उस सूरत में कुछ भी रिस्पॉन्स करेंगे, या अगर हमने अपनी राइफल भी उठाने की कोशिश करी, तो इमीडिएटली दे विल ओपन फायर, और वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, और उसमें जो है जानी माल जो है, जानी नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं उनसे बोलूंगा कि अपना जो भी माल है उनको हैंड ओवर कीजिए। तो उन्होंने कहा करें कि नहीं, सपोज अगर वो अपना एक उसमें इन द प्रोसेस आपका जो एक साथी है वो अपना माल वगैरह उसको हैंड ओवर नहीं करता है, तो उस सूरत में आप उसको बचाने जाते हैं या उससे कुछ झगड़ा करते हैं, लेकिन उसी चक्कर में वो फायरिंग हो जाती है और वो आपका कुलीग भी जख्मी हो जाता है और आप भी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, और वो जो रॉबर्स जो हैं वो भाग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो करें जब आप दिल्ली पहुंचते हैं तो यू बोथ ऑफ यू आर बैडली इंजर्ड, उस सूरत में क्या करें? Then I said, after reaching Delhi immediately, I'll just see in my team who is the most efficient person who can handle the group, and then I'll ask him to take over the command of the remaining people and take them to unit for the Republic Day parade, and I myself and my colleague, injured colleague, will get admitted to some hospital for the treatment. So anyway, he was very happy, and I was through, alhamdulillah, through this exam. So that is how they see what exactly decision you are able to take, whether it's logical, systematic, or no. So this is what happens in the interview, and then comes after interview, it becomes conference. In the conference, the complete board जो है वो तकरीबन 10 लोग रहते हैं बोर्ड में, जिसमें कि वन इज प्रेसिडेंट एंड सेकंड इज वाइस प्रेसिडेंट, 4 जीटीओज होते हैं और 4 साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजी ऑफिसर होते हैं। तो ये तमाम लोग उस दिन यूनिफॉर्म में रहेंगे कॉन्फ्रेंस वाले दिन, और हर कैंडिडेट को ऑब्जर्व करेंगे, और जो मार्जिनल कैंडिडेट्स हैं उनसे कुछ ना कुछ वहां पे सवालात करके, इफ दे कैन बी मैनेज्ड सो दे विल पुश देम थ्रू के चलिए ठीक है, इफ दे कैन बी रिकमेंडेड, और फाइनली द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द 5th डे, एंड दोज हु आर रिकमेंडेड दे आर डिक्लेयर्ड सिलेक्टेड। द लफ्ज जो सिलेक्शन है वो वहां पे यूज नहीं करते हैं, बल्कि डिफेंस में हमेशा यही कहा जाता है कि यू आर रिकमेंडेड फॉर द दिस कोर्स, एंड देन अल्टीमेटली द फाइनल लिस्ट जो है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवल हेडक्वार्टर्स पे जो है दिल्ली में फाइनली मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और उसके बाद में जो कैंडिडेट्स दे आर कॉल्ड फॉर द ट्रेनिंग। सो दिस इज द ब्रीफ सिलेक्शन। लेकिन इसमें जो है सिलेक्शन के बाद में you go for the medical examination,
और मेडिकल के बाद में फाइनल लिस्ट जो है वो उनको भेजी जाती है हेडक्वार्टर्स में, और वहाँ पे उनको फाइनल डिसीजन लिया जाता है। नाउ ये लेकिन पायलट बनने के लिए, एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए इट इज स्लाइटली डिफरेंट। इसमें स्लाइटली डिफरेंट ये है कि इसमें पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है। नाउ व्हाट इज दैट पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट? इसमें जो है ये पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट के अंदर वो देखते हैं कि आपके अंदर वो नेचुरल सलाहियत है कि नहीं है, कि आप जहाज को उड़ा भी पाएंगे कि नहीं। दिस इज व्हाट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप हैसियत पायलट सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, क्योंकि हर शख्स में हर एक सलाहियत नहीं होती है। तो जो लोग पीएबीटी में यानी पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो वो फिर उसमें जो है उनके लिए कुछ नहीं हो पाता है। इसमें जो टेस्ट होते हैं, ये 3 टेस्ट होते हैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में। नंबर 1 पे होता है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टेस्ट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग करके आपको बताना है कि कितनी अल्टीट्यूड पे हैं, whether the plane is going down, whether plane is going up, turning left or right। तो ये इसका एक छोटा सा टेस्ट होता है मामूली, जो कि इजीली पास किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड टेस्ट होता है आपका सिमुलेटर में, कॉकपिट में होता है, इसको बोलते हैं लाइट कंट्रोल टेस्ट। लाइट कंट्रोल टेस्ट में क्या होता है कि सामने एक स्क्रीन के ऊपर ये जिस तरीके का आप डॉट देख रहे हैं ये बना हुआ होता है, और इसको आपको रडर पेडल कंट्रोल स्टिक और एक लीवर के थ्रू जो है आपको कंट्रोल करके इसके अंदर ही रखना है। और इस व्हाइट डॉट की जो आदत है वो ये है कि वो फ्लिकरिंग करता रहता है पूरे स्क्रीन पे। विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू somehow bring it in the center of the screen, and that is the ability is checked कि whether you have the ability or no। तो और थर्ड टेस्ट जो होता है वो होता है ड्रम टेस्ट। दिस इज समथिंग वेरी टिपिकल to understand what exactly the drum test is। Actually this is something 8 feet long ड्रम होता है, और 1 मीटर 1 फीट की इसकी विड्थ होती है, और ड्रम होता है, इसमें जगह जगह पे डॉट्स लगे होते हैं, और एक की होती है 8 फीट के लिए, और जो उसमें नॉब होती है उससे वो चलती है की, और आपको मैक्सिमम स्कोरिंग करना है, यानी कि जो उसके अंदर डॉट्स लगी हुई हैं ड्रम के अंदर उसको टच करने से आपकी स्कोरिंग बढ़ती है। तो एंड 3 चांसेस दिए जाते हैं इसके अंदर, तो whichever is the best it's taken for granted, यहाँ ये आप कर सकते हो। तो ये जो टेस्ट है तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये ड्रम टेस्ट होता है, ये तीनों को मिलाकर बोलते हैं कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। और जो भी बच्चे इसमें पास हो जाते हैं फिर वो बच्चे का एसएसबी का एग्जाम देते हैं। मैं चूंकि although I qualified for the flying branch, लेकिन वहाँ पे फ्लाइंग का शौक पूरा नहीं हुआ, so I have taken a premature retirement at the age of 32, and मैंने अभी यहाँ मुंबई फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया है, where I'm flying the Cessna 172R plane। These are some of my photographs, so you can see, and so if the person who is interested can become pilot easily। So these are the few slides I just wanted to show you, how you can become the इसमें पायलट वगैरह किस तरीके से बन सकते हैं। इसके अलावा पायलट जो है सिविल में भी आप बन सकते हैं डिफेंस के अलावा, लेकिन उसके लिए आपको कमर्शियल जो पायलट लाइसेंस है उसका एग्जाम देना पड़ता है, और तब जाकर के आप उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ शॉर्ट ब्रीफिंग मैंने आपको ब्रीफली बताने की कोशिश की है कि क्या क्या टेस्ट हैं और किस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये मतलब इट इज नॉट वेरी एग्जॉस्टिव, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और तैयारी के लिए जो एग्जाम की तैयारी के लिए एक कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर एसएसबी जो है उसके ताल्लुक से भी आपको ये बुक्स जो है अच्छे जो बुक स्टोर्स वगैरह हैं तो वहाँ से आपको मिल सकती है कि ये आपकी एसएसबी का बुक आते हैं, तो उसमें काफी प्रैक्टिस मटेरियल भी है। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेकर के इसमें जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसको बआसानी क्वालिफाई कर पाए। तो मेरा ख्याल से टाइम क्लोज हो रहा है, फ्रॉम 45 minutes approximately I was told to cover up the things, and in case if there are some questions, so I will try to answer. Mr. Fuzail, you can take over. Thank you so much, Khalid sir. I request Fuzail bhai to please conduct the Q&A session. There are a few questions which have been raised by the participants. We'll just go by one by one. Sure, thank you. So Khalid bhai, the candidates or the attendees, they have asked a few questions. Yeah, sure. There are quite a few of them. We wouldn't have time for everything.
but I'll ask you what is most relevant to the discussions that we've had so far. So the first session question is from Shehzab Khan. He says, "Sir, I'm a second-year engineering student, ECE. Could you shed some light on the technical graduate course? And what would be the best mode for me to join the military engineering services?" Okay, the question is that he's in the second year of engineering and he wants to join the army in the technical branch. Very fine. You can do that. Yes. और इसके लिए आपको जब आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, then you are supposed to apply for the engineering branch, either in the army or maybe in navy, depending upon the your preference. You can join any one of them, but in the final year you are eligible to appear. और age factor मैंने आपको बताया था कि it should not be more than 26 years of age. Within that period, you can apply and you can get through it. So you will be called for the SSB. Be ready and take coaching for the SSB, and inshallah you will be through. Thank you. The second question from Abu Bakr Siddiq. Sir, what subjects are required to join the Navy and percentile? This is mainly, you must have the physics and maths in 12th standard. 10th subjects are common, but you must have the physics and maths to join the Navy. And same is the case for the Air Force. दोनों के लिए आपके पास में physics and maths होना compulsory है. And then you can join the force, there is no issue through NDA. Thank you. The next question is anonymous. It says, what is the benefit of RIMC exam? RIMC, what exactly stands for? I will skip that question. Next question. Sir, can we have some insight on paramedical courses? Paramedical courses is a different thing. Here we are talking about the joining the service, and the armed forces, they train, they select the people, they train themselves, they spend a lot of money, and they provide accommodation also, training also, and as well as job also. So in this case also you can join. Armed Forces Medical College Pune is there. वहाँ पे nursing के भी हैं courses, or MBBS doctors also being produced, and they join the defense as an officer in the medical faculty. So that can be done. You have to just keep a watch on the papers. Okay, what are the vacancies are coming in? Next question from Rohan Mishra. How to become a professional or business management in Army? See, business, although you get a chance to develop yourself a lot, because they expose you to different fields. So that is something, a very unique thing the defense forces offer. And they train you, at the same time they give you opportunity to prove yourself. लेकिन हाँ, जहाँ तक business का सवाल है, तो you don't get any direct chance to interact or develop any business of your own. लेकिन हाँ, ये है कि आप अगर business करना चाहते हैं, लेकिन आर्मी में अगर supplier की हैसियत से बात करना है, तो that is a different issue. लेकिन business के लिए तो आपको जाहिर सी बात है, market में ही रहना पड़ेगा. Defense is not a right place where you can go and do some business. Okay. Okay. Next question. I have completed HND Marine Engineering. So can I join Navy now? Yes, yes. Subject to your age. Just check your age, and you can apply for it. Next question. GD and CRPF BSF forces. How do I join? BSF is a paramilitary forces, border security forces, and again you will have to check out their requirement, age criteria, and then it can be applied and you can become into it. Mainly we are focusing about the three services, that is Army, Navy and Air Force. So BSF also, that plays a very important role in the peacetime, securing the border, guarding the border, and it's a powerful force as such. Okay. Can I join ISRO from Air Force? ISRO, well, some this thing is there, nomination side things are there, but as a scientist, I'm slightly apprehensive whether any scope is there. But as a scientist in the Bhabha Atomic Center in Mumbai or the other places, you can go as a scientist. So ISRO mainly is
deals with this is the space research organization it is. So that is, I don't think through Air Force it is possible. Navneet Shetty asks, can we go to Merchant Navy through Indian Navy practice session? No, Merchant Navy is a totally different field, and you have to apply directly in the Merchant Navy. So many international companies, national companies, many are there. So that depends upon your choice. They ask for some experience also, but not through Navy. It is not possible. After retirement, you can join, because what happens after gaining experience in the Navy and Air Force? See, in the civil also, almost 70% pilots are from the Air Force. So after leaving the service, they join the civil aviation, and because they have thousands of hours of flying experience, so immediately they are given preference, and moreover they are disciplined, they are task oriented, result oriented. So all these qualities they come to their advantage, and they are selected on priority. In case if you serve the Navy and then join Merchant Navy, it becomes easier to join, and at a high level also you can join. Thank you. अभी शहजाब खान ने पूछा है कि in your opinion of these is more difficult to get in, statistically speaking, engineering services examination for government PSUs or the military engineering services? See, that depends upon your intelligence, because you have to come in the merit. जो गवर्नमेंट के भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इंट्रेंस टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम होता है, और वहां से इन केस इफ यू क्वालिफाई तो यू गेट थ्रू इट. एंड सेम इज द केस आउटसाइड सिविल में भी. अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो देयर इज हार्डली एनी फीस, वेरी नॉमिनल फीस यू हैव टू पे, एंड यू जॉइन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यू कंप्लीट द डिग्री कोर्स. So that can be done, depends upon which exam you qualify and which is your preference. In case if you have decided to go to the defense, then it is obviously advisable to join the defense at an early age, after 12th immediately, so that you do the training there itself, and groom yourself in that culture and join the forces then and there itself. Anonymous asks, is the university selection stream discontinued? No, it is still there. BTech candidates are taken directly from the university, and generally what happens is from the Navy, they visit the campus and they see and they take some small exam also in the university campus itself, and those whom they find suitable, immediately they are called for the SSB interviews. Aisha Sheikh asks, defense, to become a doctor in defense, what is the procedure? That is through Armed Forces Medical College you can join. There is an entrance examination, and Armed Forces AFMC it is called, and that is in Pune. And when the entrance, after 12th, their entry points comes, you have to appear in the examination, and if you qualify and you join there, so it becomes easy. Either in the dental field or the MBBS course, you can become a doctor in the defense. I think we've more or less covered most of the questions. And really nice of you, Mr. Khalid. If anybody has any other questions, you can share them right now. We are live. After that, we will not be able to answer. But thank you, Mr. Khalid, for all of your inputs and matters relating to the national security and the Ministry of Defense, and all of the inputs that you shared with us. Obviously will help all of our youngsters to take up the Indian Armed Forces tests and all of the initiatives that are already present and working for our territorial rights and the integrity of our nation, inshallah. So thank you so much. And is there any inputs on SSR, Khalid Saab? SSR, what is that SSR? I'm again not able to get that answer actually, because you just got a question. How does the DRDO recruit engineers as analysts? Is there a direct recruitment procedure held by them, or is it through a military selection procedure itself? DRDO. No, DRDO also they I think they select directly, because I have seen some of the vacancies coming in the employment news and all. So I think they select directly. All right, so that's about it, and thank you for all of your efforts. And Shahzad bhai, over to you. Thank you so much, Fuzail bhai.
And thank you so much, Khalid sir, for such an insightful session. It was very well explained in a simple way for everyone to understand. To all the Okay. participants who attended this session, thank you so much for joining. It was fantastic to have you all on board. AMP has organized total of 10 sessions on online career guidance seminar by highly qualified professionals and experts in a particular field to share their learnings and viewpoints to guide everyone. So we request you all to keep joining all these sessions so it will give you a clear idea and understanding and what field to go, what career path you should choose depending on your skills. And we also request you to ask your friends to join these sessions and benefit from it. So we'll now be ending this session with a dua. Okay. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى بهذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you so much, everyone. This is Shehzad signing off from here. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, everybody. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.